शुरुआत सबने एक स्टेप से करी हो, तो आपका पहला स्टेप क्या था इसके? Starting में I think we did not put more than 1 or 2 lakhs I think. प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, आपको जी। कभी लगा नहीं यू शुड आल्सो मूव ऑन टू कॉस्मेटोलॉजी? नहीं, I'm very happy to leave cosmetology actually. आपको कितना स्टाफ लगता है इस पूरी जगह को मैनेज करने में? जब आपने शुरू किया, आप एक फाउंडर थी, आपने कितने काम खुद करे थे? क्लिनिक की क्लेanलीनेस को लेके, HR को लेके, IT को लेके, फाइनेंस को लेके, कंसल्टेशंस, हाउ मेनी पेशेंट्स डू यू गेट इन अ मंथ हियर? 200 to 300 patients every day, all the centers taken together, and in a month we are doing some 100 surgeries approximately. जब आपके पास सेलिब्रिटी पेशेंट्स आते हैं, डू दे कैरी रिस्क आल्सो? There was an actress from South. She told me मैंने ये देखा कि सल्लू भाई के भी हम पूरे बाल बहुत ज्यादा घने हो रखे हैं. all the Bollywood actors, if you look at their hair, they have put a lot of topic. What do you see the future of hair transplant? Being a female was a disadvantage. Not at all. How much can a dermatologist earn in the field of hair transplant? Hello, Dr. Erika ma'am. Welcome to the Nachiket Bhatia show. And thank you for inviting me, and I'm really honored. Thank you so much. Ma'am, you are a successful doctor turned entrepreneur, a businesswoman, and a great doctor again. You have conquered this field of dermatology. So before we get into that, I would like to know everything about your own journey. How did you get into the field of MBBS? How did you get into the field of dermatology and then, became a successful entrepreneur? Yes. So I would say I am not from a business family, and none of my family members were doctors even. So I had zero exposure. But yes, I had strong inclination for science subjects. So I was not good at studies during the middle school or so. But around the class 9th, I developed a strong inclination, and I found my calling in subjects of science like physics and biology were my favorites, and mathematics also. So by the time I entered 11th, I was very sure that I have to do something in mathematics. And in 11th, I did very well in maths and physics and other subjects. But by the time I entered 12th, somehow there was a realization that I became more interested in biology, and I felt that yes, I can do very well in medical. And there was a slight motivation from my father also, who said that, see, I'm an engineer, but I feel a doctor is much more accomplished in life. So that also gave me some motivation to choose medicine at that point of time. So it was in beginning of 12th that I dropped out of maths, and my maths teacher was very sad with my decision. But I was not sad, and I was like feeling very relieved, although that was my favorite subject. But when I changed to medical, I felt a lot of relief, and I did 12th nicely in a very seamless manner. I never took stress for marks or anything. I never had any goals in mind. I studied from my own enjoyment. And the result was that because of preparing for medical, I did not take any stress, and probably that contributed me getting a all India rank in the first attempt itself. I have a complaint. 90% of you have still not subscribed to the channel. So before moving forward, please go ahead, press the subscribe button and click the bell icon. So yeah, so I was lucky enough, or I would say I was blessed that I could get a good all India rank in medical entrance in the first attempt itself. And if I'm just what was the rank? I got 99 rank. Wow. That in those days, and everyone in family was surprised because they were very sure that I won't get into the medical because I was studying very very less in their eyes, and they were thinking कि इसको तो private में डालना पड़ेगा, कहीं पे admission वगैरह कराना पड़ेगा. But I would say it was God's blessing that I got that rank, and I could get into Lady Hardinge Medical College in New Delhi. So the college life was entirely different. शुरू में थोड़ा ragging period was little stressful for me, and वहाँ जाके मुझे realize हुआ कि बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मैं I was put off in the initial part, but things took off because anatomy I liked a lot in the first prof. Physiology was my least favorite, but जैसे तैसे करके MBBS is a struggle for everyone, we all know. So in third year I had that syndrome कि हर बीमारी मुझे हो रही है वो like hypochondriasis syndrome type का बोलते हैं, तो मुझे भी तब उस टाइम फील होता था when we were reading that pathology वाला Robinson's pathology हम पढ़ते थे. और धीरे धीरे करके final MBBS complete हुआ, and then internship started. Internship was a very good experience at Lady Hardinge because हमको बहुत अच्छे अच्छे cases देखने को मिलते थे, and our internship program was very well structured. So my internship started with community medicine.
इन कम्युनिटी मेडिसिन पोस्टिंग्स आई रियलाइज, जब हमारी रूरल पोस्टिंग होती थी, कि जो हम जनरल ओपीडी करते थे वहाँ पे एज अ एमबीबीएस इंटर्न बैठ के, तो हमारे 40% पेशेंट्स डर्मेटोलॉजी के होते थे, 30%, अभी पता नहीं क्या रेशो होगा, बट उस टाइम पे हमने जो देखा 30% रेस्पिरेटरी एंड रेस्ट ऑफ द 30% वर एब्डोमिनल। सो मैंने देखा कि डर्मेटोलॉजी का जो है चंक सबसे ज़्यादा है, एंड ग्रेजुअली दैट अवेयरनेस वाज राइजिंग कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है स्किन पे तो स्किन के डॉक्टर के पास जाएगा, ना कि जनरल प्रैक्टिशनर के पास। तो वो भी एक अलग से अवेयरनेस आई कुड सी गोइंग ऑन। एंड व्हेन इन इंटर्नशिप आई गॉट डर्मेटोलॉजी पोस्टिंग, आई वाज रियली अमेज्ड, क्योंकि वही एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पे हमारे टीचर्स ने बुक भी खोली हुई है, पेशेंट भी सामने बैठा है, वो बुक से पढ़ रहे हैं, साथ में पेशेंट की स्किन लीजन देख रहे हैं, एंड दे आर मैचिंग side by side. So the good part of dermatology was that you don't need a CT scan, ultrasound, MRI to make a diagnosis in most cases. Disease आपकी आंखों के सामने है, और आप in fact even without touching you can make a spotter diagnosis. So that was the most inspiring thing for me. Then the procedure in dermatology were also gratifying. जैसे हमको skin biopsy हमको लेडी हार्डिंग में सिखाया गया, the elliptical biopsy we used to take, we used to put sutures, लाइपोमा एक्सीजन, sebaceous cyst एक्सीजन, तो हमको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला इन डर्मेटोलॉजी ऑफ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप। और जो डिजीजेस जैसे आम आदमी को देखने में सोराइसिस, लाइकन प्लानस सब एक जैसा दिखता है, डर्मेटाइटिस, बट हमको जब वो डिफ्रेंशिएट करने के फीचर्स इंटर्नशिप में समझ आने लगे तो काफ़ी एक इंटरेस्ट जगा उस फील्ड में। उसके अलावा मुझे साइकाइट्री में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट और एक्सपोजर मिला था लेडी हार्डिंग में। वी सॉ टिपिकल केसेस ऑफ डिप्रेशन, टिपिकल केसेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड मेनिया, और हमारे लेडी हार्डिंग के साइकाइट्री डिपार्टमेंट में दे वर गिविंग वेरी एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स ऑल्सो, सो दैट ब्रांच ऑल्सो इंट्रीग्ड मी अ लॉट। देन MD मेडिसिन वॉज ऑल्सो माई क्वाइट फेवरेट सब्जेक्ट। सो इनिशियली इंटर्नशिप के दौरान में हमको इतना पढ़ा, मतलब काम करवाया जाता है कि बाय द एंड ऑफ इंटर्नशिप यू डोंट हैव इनफ एनर्जी लेफ्ट टू क्लियर द एग्जाम्स, जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। सो आई कुड in fact in my first attempt of PG I was getting ENT, so I was getting ENT in Rohtak Medical College and UCMS College, but उस टाइम पे मुझे लग नहीं रहा था कि I am made for a ENT branch because it was a highly surgical branch। तो मुझे थोड़ा सा मेडिकल, MD मेडिसिन, MD पीडियाट्रिक्स की तरफ ओरिएंटेशन था। सो माई मदर गेव मी द कॉन्फिडेंस कि देख जब तेरे को बिना पढ़े इतना मिल रहा है तो यू कैन गेट पढ़ के तो यू कैन गेट डू बेटर एंड ट्राई टू टेक समथिंग ऑफ योर ओन चॉइस बाय स्टडिंग वेल। सो मैंने उनकी बात पे विश्वास करके आई टुक अ ड्रॉप एंड आई हैड गुड फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स वर ऑल्सो गाइडिंग मी। देन आई डिड सम क्रैश कोर्स कोचिंग विच आई जस्ट टोल्ड यू फ्रॉम माई IMS इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे हमने कोचिंग किया। तो उसके बाद जब एग्ज़ाम्स हमने दिए तो आई गॉट गुड रैंक एट एम्स विच वॉज अगेन हाईली नॉन एक्सपेक्टेड, एंड आई गॉट एम्स में रैंक 11। बट जब वो रैंक मिल गई तब मुझे लगा कि अच्छा अब तो मेरे पास सारी चॉइस है, बट दैट वाज अ वर्स्ट सिचुएशन कि आपको अब आपको सब कुछ मिल रहा है तो आपके ऊपर डिसीजन मेकिंग का प्रेशर आ जाता है। तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एट दैट टाइम। सो मैं सबसे पहले एम्स के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में गई, तो आई मेट डॉक्टर्स एंड रेजिडेंट्स वर्किंग देयर। सो वहाँ जाके मुझे पता चला कि द वर्ड्स दैट दे वर टोल्ड मी कि 3 साल तो भूल जाओ कि कुछ लाइफ भी है, बहुत काम करना पड़ेगा, ये वो। आई थिंक पर पेशेंट बहुत सारे वो होते थे उनके पास responsibility. I think 8 to 10 beds were there with the resident at that point of time. So I was little scared. Then I was thinking of MD medicine also. तो सब करके फिर I realized कि let's go for a clinical branch which has little bit of surgical thing also. And ये मेरा था कि मुझे हाँ patient interaction चाहिए, तो मुझे clinical branch चाहिए। और 1 साल घर पे बैठ के मुझे थोड़ा realize हुआ था कि subsequently at some point of time I would want a branch where I don't have to deal with emergencies. Because एक बार मैं आपको बताती हूँ, 3rd year में when I was there, someone in my family was unwell. They had a bad abdominal pain and we were out of station. तो मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गई रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था नर्सिंग होम का। तब मुझे लगा कि एक डॉक्टर अगर अपनी वर्क लाइफ बैलेंस देखता है, अपनी नींद पे ध्यान देता है, तो ही एंड अप इग्नोरिंग लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर इन अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। तब मुझे लगा कि हाँ, अगर इमरजेंसी ब्रांच लेनी है तो आई विल नेवर, इफ़ आई हैव माई ओन प्राइवेट सेटअप देन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी माइन। तो वो मेरे दिमाग में घूम रहा था।
So finally I made a choice कि I will take a branch which has less of a emergency thing, and dermatology was that. The second was कि आप सामने एकदम से diagnosis बना सकते हो, तो that's why I took dermatology, and I still feel कि I made a good choice and I'm very happy about that decision. So when I entered dermatology, the department, I met my HOD on day one. He said, don't think that it's a light department, it's more or equal to MD medicine, तो आपको उतना ही काम करना पड़ेगा. तो फर्स्ट डे उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन अगले 3 साल के लिए सेट कर दी, that I should not take things lightly. Then things moved on, so that was another. Dermatology learning in AIIMS was very, very good in those days. I'm sure it is good now also. Ma'am, how soon after completing your post-graduation did you jump into practice? So मैं आपको बताऊँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद माई ड्रीम वॉज टू बी अ टीचर एंड अ फैकल्टी इन अ गुड मेडिकल कॉलेज, एंड दैट वॉज माई ड्रीम. तो कभी प्रैक्टिस के बारे में कभी सोचा नहीं था, कभी करना भी नहीं था, बट आई वॉज नॉट गेटिंग द फैकल्टी पोजिशन एनीवेयर. I started as a senior resident in Himalayan Institute of Medical Sciences, which is in Dehradun. So I chose that place because थोड़ा दिल्ली से बाहर भी जाना था और दिल्ली में फैकल्टी पोजीशंस नहीं थी. दिल्ली में आपको कुछ चेन्स वगैरह में कुछ पार्ट टाइम जॉब्स ऑफर हो रही थी उस समय. So there I got a teaching position. So I taught MBBS students about dermatology in those days, and that gave me a lot of fulfillment. And उस टाइम पे I was taking lectures also. We were only 2 dermatologists in Himalayan Institute at that time. तो हम दिन की OPD भी करते थे 20-30 पेशेंट्स की. हमको डर्माटो सर्जरी भी मिलता था थोड़ा थोड़ा करने को इवनिंग में, हमारे हिसाब से जो पेशेंट्स होते थे. प्लस हमको वार्ड के पेशेंट्स भी देखने होते थे, जैसे वार्ड में कोई एडमिटेड है, SLE है, डर्माटोमायोसाइटिस है, तो उनकी भी ट्रीटमेंट के लिए हमको वार्ड्स में जाना होता था, प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी होता था. तो इट वॉज अ प्रिटी हेक्टिक वर्क विच आई डिड फॉर 3 years. And post that, when I was actually getting the position of faculty, that time somehow I decided to leave because my husband, Dr. Pradeep Sethi, he's also dermatologist from AIIMS, so we got married after my PG. So he started the practice in the meantime in Rishikesh. तो he was like कि नहीं, अब तुमको प्रैक्टिस में ज्वाइन करना है. तो तब वो थोड़ा मेरे लिए डिसीजन थोड़ा ग्रे एरिया में था, बिकॉज आई वांटेड कि मुझे फैकल्टी पोजीशन मिल रहा है, I will get a better situation to work, and also I will get more time for my kid also going forward, because faculty में थोड़ा relaxed होता था वहाँ पे. But he was very persistent कि नहीं आप private में आओ. तो private में then I moved on to private in Dehradun. So we started off a private dermatology clinic in Dehradun that time. तो private में मैंने देखा कि it is entirely different from what we did at AIIMS. In AIIMS we were purely focusing on clinical dermatology. Patient आएगा scabies, tinea, acne, जो भी डिजीज़ के साथ, जो कॉमन डिजीज़ की मैं बात कर रही हूँ, और वो फट से हम दवाई देते हैं, ठीक हो जाते हैं. लाइकन प्लानस, सोराइसिस, विटिलिगो, दीज आर क्रॉनिक डिजीजेज जिनमें ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, काउंसलिंग का रोल ज़्यादा होता है, बट इट इज़ वेरी ग्रेटिफाइंग फील्ड आई वुड से. बट जहाँ पे मैंने देखा कि अब यहाँ पे कॉस्मेटोलॉजी का रोल आ रहा है. कॉस्मेटोलॉजी मीन्स पेशेंट पीलिंग करा रहा है ग्लो के लिए, कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए वो लेज़र हेयर रिमूवल करा रहा है, परमानेंट हेयर रिडक्शन करा रहे हैं. तो वहाँ पे आई फाउंड दैट इट इज़ नॉट वेरी फुलफिलिंग एंड एन्जॉइंग. फिर हाइड्रा फेशियल होता है, ग्लो के लिए होता है, तो उन सब में आई रियलाइज कि आई एम नॉट फाइंडिंग द जॉय वाला फैक्टर. बट येस, डर्माटो सर्जरी वॉज गुड. देहरादून में वी हैड गुड डर्माटो सर्जरी एक्सपोजर. वी यूज टू डू ईयर लोब रिपेयर, जैसे फीमेल्स में पूरा वो एयर कट जाता है, तो वी वर डूइंग डर्माटो सर्जरी ऑल्सो. So what gave me fulfillment was dermatosurgery and clinical. That cosmetology was never ever inviting for me mentally. तो धीरे धीरे करके फिर हमने dermatosurgery का ही एक पार्ट था hair transplant. So once I started that along with Dr. Pradeep, then we realized कि इसमें we are getting सामने रिजल्ट. ठीक है, आपको डायग्नोसिस सामने हो रहा है कि किसी का ऑलरेडी बॉल्ड है एरिया, एंड वी आर एबल टू ग्रो द हेयर. सो 100% ग्रेटिफिकेशन इज देयर, जो हमको अपनी आंखों से दिख रही है और पेशेंट को भी दिख रही है. तो दैट इज वाई ग्रेजुअली टुक ओवर द डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस. देन वी मूव टू दिल्ली NCR. हियर आई कंटिन्यूड एज डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट. बट मैं रियलाइज कर रही थी कि आई वॉज नॉट डूइंग जस्टिस टू डर्मेटोलॉजी, बिकॉज आप हेयर ट्रांसप्लांट में अगर इन्वॉल्व हो जाते हो तो यू डोंट गेट टाइम टू डू द जनरल OPD. तो इसलिए ग्रेजुअली आई हैड टू मेक दैट हार्ड डिसीजन
Because once we decided to open Bombay, then I realized कि अब तो possible नहीं हो पाएगा. Then we closed down the dermatology as such and continued only with hair transplant. मैम आजकल ना एक डर्मेटोलॉजी की बारे में बात कही जाती है दैट इट्स अ सुपर सैचुरेटेड ब्रांच स्पेशली इन टियर 1 सिटीज. आपकी बातों से मुझे लग रहा है दैट 2004 के अंदर भी या 2007-8 के अंदर भी इट वाज अ सैचुरेटेड ब्रांच ओनली. Do you think this I don't holds think true? it is a saturated branch. मैं बताती हूँ क्यों. मैंने आपको बताया ना जैसे जनरल पॉपुलेशन में जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्किन इज अ मेजॉरिटी ऑफ देम. तो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट की अभी थोड़ी कमी है. मेरे को ये लगता है टियर 1 में भी क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट आर स्टिल नीडेड. और क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होता है डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट का. वो भी बहुत लैकिंग है. देयर आर वेरी लेस पीपल हु आर आई वुड से स्किल्ड इनफ टू डू अ गुड डर्मेटोपैथोलॉजी रिपोर्टिंग. एक नॉर्मल जो पैथोलॉजिस्ट होता है उनका डर्मेटोपैथोलॉजी एक्सपोजर कम होता है कि लाइकन प्लानस माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है, सोराइसिस लाइकन प्लानस में वो माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है, इंटरफेस डर्मेटाइटिस क्या होता है, पिगमेंट इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, एक ट्यूबरक्यूलोसिस का कैसा दिखता है ग्रैनुलोमा, एक नॉर्मल वो दूसरा कैसा ग्रैनुलोमा दिखता है, तो वो फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा कैसा दिखता है. तो ये सारी चीज़ें ना हमको एम्स में दिखाई गई थी. We were given opportunity to go to the pathology and see the skin slides. So that particular skill is very very I would say less in India. और टियर 1 में मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा सैचुरेशन है. स्किन इज सच अ सेल्फ सस्टेनिंग ब्रांच. द इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ स्किन प्रैक्टिस इज लेस एंड द ग्रेटिफिकेशन इज ह्यूज. I was ma'am saying in the terms of jobs basically. हाँ जॉब्स में आई थिंक हाँ जॉब्स में देखिए एक इशू है कि डर्मेटोलॉजी में एक्ने, स्केबीज और टीनिया एक आम एमबीबीएस डॉक्टर भी सीख जाता है उसको ट्रीट करना. सो मे बी दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब्स. वो तो मैंने भी उस टाइम भी फेस किया था. व्हेन आई वांटेड अ जॉब, इवन आई वाज नॉट गेटिंग अ फुल टाइम जॉब. इवन देन in 2006 I'm talking about, I was not getting a full time job. Plus ma'am, I've also heard this thing, you might say it's true or not, that people from other branches like BDS, homeopaths, they have also entered the field of dermatology. हाँ जी. तो मैंने वही बताया ना, कॉस्मेटोलॉजी वाली जो चीज़ है, बोटॉक्स, फिलर्स, हाइड्रा फेशियल, फेस लिफ्ट, तो वो कोई भी कर रहा है आज की डेट में. तो वो भी एक रीज़न है. एंड दैट इज़ द आई थिंक द मोर रेवेन्यू जनरेटिंग फील्ड दैन क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी. तो मे बी सब लोग उसमें वेंचर कर रहे हैं. मैंने खुद ये फील किया दिल्ली एनसीआर में आके कि जो पेशेंट्स आते थे 60-70% अबाउट कॉस्मेटोलॉजी. प्रॉपर जो है क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के पेशेंट्स काफी कम थे. क्योंकि हम अब तो डर्मेटोलॉजी लेते टाइम ही कहा जा रहा है इफ यू आर नॉट गुड इन द फील्ड ऑफ सेल्स you can't become a dermatologist because cosmetology has become the majority portion in this complete field. Okay, ये मुझे नहीं पता था. आई एम नॉट वेरी श्योर. नहीं मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वैसी बातें सुनता हूँ तो मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ. हाँ देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटोलॉजी पे फोकस करेंगे ना तो आई थिंक देयर माइट बी अ सैचुरेशन इन टियर 1. आई एग्री टू दैट. Ma'am, how did you venture into the field of entrepreneurship? That also happened by default because we were running a hair transplant practice. We never knew that we will grow into a organization which is like a successful business. तो वो भी organically हुआ है. That is why it has taken 18 years now. Because अभी मैं कभी कभी किसी से मिलती हूँ, people who are running chains and all, not the medical doctors but who are managing the big chain. Like आपको पता है जैसे कोई मैक्स, फोर्टिस, अच्छा तुमने 18 साल में सिर्फ 4 ही सेंटर खोले हैं. तो दे ट्रीट इट कि अच्छा तुम तो कहीं भी नहीं पहुंचे हो. सो दे ट्रीट इट लाइक दैट. बट फ्रॉम अ डॉक्टर्स परस्पेक्टिव ये 4 खोलना विद मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड ऑल इज ऑल्सो अ डॉन्टिंग टास्क. तो मुझे लगता है कि 4 खोलने इज ओके. वो उनको लगता है कि 4 क्यों खोले, 40 क्यों नहीं खोले, 18 साल में तुमने 40 सेंटर क्यों नहीं खोले. तो अगर मैम आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं मैं इसमें, हाउ मेनी पेशेंट्स डू यू गेट इन अ मंथ हियर आपके चारों सेंटर मिला के? चारों सेंटर मिला के सर्जरी के पेशेंट्स या कंसल्टेशन के? मैम दोनों को मिला लेते हैं एक बार, फिर दोनों को अलग अलग बताइएगा. हाँ देखिए, कंसल्टेशन के लिए वी गेट ऑलमोस्ट 200 to 300 पेशेंट्स एवरी डे, ऑल द सेंटर्स टेकन टुगेदर. आउट ऑफ द एवरी डे या out of that around 100 patients they end up sharing their pictures because जब तक वो pictures share नहीं करेंगे हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी. तो around 100 are sharing pictures on a everyday basis and in a month we are doing some 100 surgeries approximately average, all the 4 centers taken together. And that's a very good number. Yes, but आप ये भी देखिए ना कि these days baldness is so common that 50% of our population men
are actually needing it. So that's why not like 80% of men are needing it. So that's why there's a huge demand also. नहीं मैम, मुझे भी चाहिए, मेरे भी जा रहे हैं यहाँ से। इसके बाद पूछूंगा मैं हालांकि आपसे। आपके बहुत घने हैं बाल, but there has been a little hairline recession. यस मैम, ये जो स्ट्रेस है ना मार रहा है बस अंदर से। जी। तो मैम जब आप when you came to Delhi, when you Yes. wanted to start a private practice here, did you start from here only, where we are Yes, actually doing? yes, we started from this area. तो मैम It is in आपको Gurgaon. क्या क्या मतलब व्हाट वाज योर माइंडसेट, क्या आपकी स्ट्रगल्स रही, कैसे आपने पहला महीना कैसे गुजारा आपने? हाँ देखिए, मैं बताती हूँ क्या होता है कि देहरादून में भी फेस्ड स्ट्रगल की जो जहाँ हमने प्रैक्टिस शुरू की थी वो रेजिडेंशियल एरिया था, बिकॉज आई हैड स्मॉल किड्स ऑल्सो दैट टाइम। तो देयर वाज अ कंप्लेंट फ्रॉम द नेबर्स कि अरे ये तो कमर्शियल शुरू कर रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया में। तो जब हम यहाँ आए तो वी वर वेरी श्योर कि हम ऐसी जगह शुरू करेंगे विच इज़ सर्टिफाइड कमर्शियल, ताकि बाहर आसपास के लोग ब्लैकमेल ना कर पाए। So that time I had support from family also, so we took this place and we took all the permissions, the required permissions, कि बाद में कोई ये ना बोले कि आप रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो। So there are some government rules, if we follow them but to the T। तो वो चीज़ का मैंने उस लर्निंग को, देहरादून की लर्निंग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया कि वी विल डू एवरीथिंग बाय द टी एंड बाय द लॉ। तो वो एक चीज़ प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप हर गाइडलाइन को देखो, जितना समझ में आता है। यू कैन हैव CA पीपल गाइडिंग यू एंड अदर लॉयर्स ऑल्सो, यू कैन टेक गाइडेंस कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन में जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर होना चाहिए, ये पता ही नहीं था, तो ये चीज़ आपको होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ बेसिक्स होते हैं, आई थिंक एवरीबडी नोज दीज डेज। अभी तो शार्क टैंक का ज़माना है। बताइए प्लीज। हाँ, अब तो शार्क टैंक का ज़माना है, लोग पहले ही 10th क्लास से एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। बट हाँ, जितना आप कंप्लायंसेस को, रेगुलेशंस को डे 1 से अच्छे से ध्यान में रखोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मेरा तो मैं यही बोलूँगी कि द ओनली क्या बोलते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल और माई पोल स्टार वॉज कि पेशेंट को एक तो रिजल्ट नंबर 1, सेकेंड इज पेशेंट की सेटिस्फैक्शन तभी होगी। पेशेंट को रिजल्ट आ गया बट सेटिस्फैक्शन नहीं होगी अनलेस आपकी ने उसकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग सही नहीं करी है। तो एक नेगेटिव काउंसलिंग नाम की जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑल कॉस्मेटिक सर्जरीज इंक्लूडिंग हेयर ट्रांसप्लांट। जैसे हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, हम पेशेंट को बताते हैं कि आप इतनी डेंसिटी मत एक्सपेक्ट कीजिएगा जो आपकी पहले थी। जैसे आपकी जो डेंसिटी पीछे की है, जो डोनर एरिया की है, उसकी 1/3 डेंसिटी होने वाली है, वो हम पहले ही बता देते हैं। फिर ओवर द एक्सपीरियंस मैंने ये भी सीखा कि उसको ये भी बताएंगे हम कि ऊपर से लाइट पड़ेगी या पानी डालेंगे या तेल डालेंगे तो गैप्स दिखेंगे। आप ट्रांसप्लांटेड बालों को ऐसे से गैप करके देखेंगे तो गैप्स दिखेंगे। एक्सपेक्टेशन सेटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। उससे क्या होता है, जो पेशेंट सर्जरी कराना चाहते हैं बट उनके दिमाग में कुछ और ही स्टोरी चल रही है, उनका ड्रीम किसी और ही लेवल पे चल रहा है, तो उनको आपको रियलिटी पे लाना होगा। आपको उनको समझाना होगा, सी दिस इज व्हाट यू कैन अचीव विद ट्रांसप्लांट एंड दिस इज व्हाट यू कैन नॉट अचीव। दे मे लिसन टू यू बट मे नॉट रजिस्टर इट इन देयर माइंड। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर उनको समझाना कि हमने ये बताया, आपको बात समझ आ गई कि नहीं। सो हम आपको खुश करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। जैसे लेट अस सपोज आई सॉ यंग बॉय 26 year old बेस्ड आउट ऑफ US, ही वांट्स अ वेरी हाई डेंसिटी प्रोसीजर रिजल्ट विच शुड मेंटेन फॉर 15 years। तो वो उनको बताना पड़ेगा कि भाई हम भगवान नहीं है, हमको जादूगर नहीं है, हमारे पास साइंस में इतनी लिमिटेशन है, हम इतना दे सकते हैं। इफ़ दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू देम देन दे शुड मेक अ कॉन्शियस डिसीजन फ्रॉम देयर साइड। तो ये चीज़ मुझे लगता है बहुत एफर्ट मांगती है, और यहाँ पे ही कोई नॉन डॉक्टर अगर इस बिज़नेस को चलाएगा वो यहीं पे सफ़र करेगा। वो यही बोलेगा हाँ हाँ आपका हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, और कर देते हैं। नहीं, आपको उसको पूरा अच्छे से समझाना है। बट मैम ये लोग इस बात पे भी तो करते हैं बिकॉज द सेटअप एंड द ऑपरेशंस आर सो हैवी इन कॉस्ट, वो किसी भी क्लाइंट को जाने देने अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए शायद वो नेगेटिव काउंसलिंग भी नहीं करना चाहते। बिकॉज अगर नेगेटिव काउंसलिंग में चला गया तो अब अगला ग्राहक कब तक आएगा किसी को नहीं पता। यहाँ तो एक लंबी लाइन है मैम क्लाइंट्स की। तो हम इस टाइप पे डॉक्टर को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, स्टिक टू द एथिक्स, वो बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव काउंसलिंग, चाहे आपके पास महीने में एक ही पेशेंट हो, बट आप उसकी नेगेटिव काउंसलिंग ज़रूर कीजिए, बिकॉज दैट विल गिव यू अ पीस ऑफ माइंड। अल्टीमेटली आप पीस ऑफ माइंड के लिए तो काम कर रहे हैं ना, एंड पेशेंट ऑल्सो पीस ऑफ माइंड, सो दैट दे डोंट फील चीटेड एट द एंड ऑफ द डे। तो ये हमारे साथ होता है, इट्स अ डे। मैं ये नहीं कह रही हम 100% कर रहे हैं, आज भी वी हैव केसेस हु आर डिससेटिस्फाइड, बट फिर हम उनको दिखाते हैं कि सर देखो हमने आपको बताया था कि ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, ऐसे घना बनाएंगे। तो वो प्रूफ होना भी आपके पास ज़रूरी है।
आपने पेशेंट को समझा दिया, पर उस समझाने का प्रूफ कहाँ है आपके पास? यू कैन नॉट रिकॉल कि मैंने 1 साल पहले ये बोला था. सो वी नीड टू डॉक्यूमेंट दोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंसलिंग पॉइंट्स थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप. सो वो हमको करना पड़ता है. और हम लोगों ने एक नई चीज़ जो शुरू की है पिछले 4-5 साल में इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ प्लानिंग डिजाइनिंग काउंसलिंग. यानी आप सर्जरी के लिए आके बैठे हो, आपसे जो डिस्कशन होती है वो बहुत इम्प्रॉम्प्टू होती है. उसमें जैसे कभी कभी पेशेंट बोलते हैं नहीं मुझे यहाँ नहीं, थोड़ा हेयर लाइन यहाँ बना दो. जैसे मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, देयर वाज एन एक्ट्रेस फ्रॉम साउथ. शी टोल्ड मी कि आप डॉक्टर एरिका मेरा ना ये साइड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज डोंट टच दिस एरिया. मैंने कहा ठीक है. सो वी डिड द हेयर लाइन फॉर हर, वी टच दिस साइड बट आई डिड नॉट टच दिस साइड. ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑल्सो शी सेड कि इधर तो नहीं आपने टच किया ना. मैंने कहा नहीं मैम, इधर हम टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, विल गिव एनेस्थीसिया एंड ऑल. तो शी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मेरा लेफ्ट साइड में आप सर्जरी मत कीजिए. बट पोस्ट सर्जरी शी फेल्ट कि मेरा आपने ये एरिया छोड़ दिया. अब मैं तो फंस गई. मैंने बोला मैम आपने ही बोला था कि इधर टच नहीं करना. देन शी गॉट इवन एंग्री. शी सेड आई नेवर सेड दैट. तो अब वो इम्प्रॉम्प्टू डिस्कशन का तो कोई प्रूफ था नहीं मेरे पास. सो देन वी स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग द सेशन विच इज़ इस सर्जरी से जस्ट पहले जो हमारी डिस्कशंस हो रही हैं, जो बहुत बैक एंड फोर्थ होती है, और इट हैज़ टू बी अ कॉमन मैनेजमेंट प्लान अग्रीड अपॉन बाय द पेशेंट एंड द डॉक्टर. सो उसके लिए हम वी डू अ प्लानिंग डिजाइनिंग सेशन को रिकॉर्ड करते हैं हम, ताकि कोई ऐसा ना लगे कि हमने कोई अपना डिसीजन इम्पोज किया या हमने किसी पेशेंट की किसी बात को इग्नोर किया है. हेयर ट्रांसप्लांट को आप ऐसा समझिए जैसे अगर आपको अपना घर बनाना है तो घर आपका है, आर्किटेक्ट तो नहीं बताएगा ना कि अगर आपको पसंद है कि किचन में डे लाइट ज़्यादा है या जो भी है, तो वो आपके घर का नक्शे में आर्किटेक्ट आपको गाइड करेगा बट आपकी चॉइस से बनाएगा. तो हमारे में भी वही वाला रोल हो जाता है कि हम एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हम अपना दिमाग तो लगाएंगे, अपने हिसाब से गाइड करेंगे, बट फाइनल से विल बी पेशेंट्स कि पेशेंट को क्या चाहिए. तो एक बैक एंड फोर्थ डिस्कशन बहुत ज़रूरी होती है और एक कॉमन मैनेजमेंट प्लान पे हम अराइव करते हैं. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देयर वाज वन यंग बॉय हु वाज फुल्ली बॉल्ड, बट उसको सिर्फ क्राउन परेशान कर रहा है, उसको फ्रंट करना ही नहीं है, केवल क्राउन ही परेशान कर रहा है. तो उस केस में ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी कि नहीं आप फ्रंट भी ज़रूर करो. तो मुझे पता था कि अगर मैंने केवल क्राउन किया तो उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो बहुत अजीब लगेगा, पैची लगेगा. सो आई रीडिजाइंड द प्लान इन सच अ मैनर कि उनका काम भी हो जाए और वो अननेचुरल भी ना लगे. सो वी हैव टू डू इन द सेम केस ऑफ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, वी हैव टू चेंज आवर प्लान अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स डिमांड्स, पेशेंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड देयर डोनर क्वालिटी एटसेट्रा ऑल्सो. मैम अगर मैं उस साउथ के एक्टर्स पर दोबारा जाऊँ तो आपने कैसे मैनेज किया फिल्म को? हाँ, वो हमारे लिए थोड़ा ट्रिकी हो गया था बिकॉज हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं था, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कट कि उनका यहाँ नहीं है. सो व्हेन वी टोल्ड हर कि सी विल डू दिस एरिया द वे यू वांट, विल नॉट चार्ज यू, एंड दैट वे वी मेड हर सेटिस्फाइड. सो वो हमको उनका एरिया जो छोटा सा छूट गया था, एंड आई डिड नॉट थिंक कि शी डिड इट पर्पसली, बट आई थिंक वो खुद ही अपने दिमाग में शायद थोड़ा कंफ्यूज रही होंगी. ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना कि कभी कभी पेशेंट्स खुद ही हाईली कंफ्यूज होते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या चाहते हैं. तो इसलिए ये भी चीज़ भी बहुत ज़रूरी हो जाती है. आई मीन दैट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि कैसे मतलब जो चीज़ आप छोटा सा मिस कर रहे हो, हाँ, पूरी हाँ, सब कुछ आपने कर लिया, बस एक छोटा सा वो छोटा सा इम्प्रॉम्प्टू चाहिए. कन्वर्सेशन ने कितना खराब कर दिया. जी 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 जी. तो अभी भी वो चैलेंजेस हैं. मैं ये नहीं, डे इन एंड डे आउट की लर्निंग है, तो हमारी छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं. ट्रू. तो मैम ये हमारे ऑडियंस के लिए है. मैम जब भी कोई स्टूडेंट आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन और इवन आफ्टर MBBS, you know, they plan to open a small clinic, maybe a nursing home. They always look at Medanta or something and they get confused कि यार अगर स्टार्ट करना है ना तो 1000 करोड़ चाहिए ही चाहिए. मैम आज आपका बहुत शानदार सेटअप है. You have spent, I think, very lavishly in the clinic. I would not call it a clinic. I would call it a proper establishment. But मैम शुरुआत सबने एक स्टेप से करी होती है. तो आपका पहला स्टेप क्या था इसके अंदर? हाँ, देखिए हमारे साथ क्या था कि वी वर हस्बैंड वाइफ, सो आई हैड अ स्टेबल अर्निंग एज अ सीनियर रेजिडेंट in Himalayan Institute, so we could put in a very very small investment to start a very small clinic in Rishikesh. तो वो जो जगह हमने देखी थी वो पूरी हम दोनों ने मिलके फाइनलाइज की थी. Then we ordered a furniture for there, then we hired one receptionist, one driver for just coming and going. फिर वहाँ की स्टेशनरी प्रिंट कराना, फिर वहाँ पे थोड़ा पैम्फलेट्स करके वो करना. एंड द फेलो ऋषिकेश डॉक्टर्स वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव इन दोज डेज. तो वो दोनों ने मिलके किया था उस समय.
मैं And अगर मैं आपसे my- पूछूं कि आप जी, जी, कंफर्टेबल है बताने में, उस टाइम पे आपने उस क्लिनिक पे कितना पैसा लगाया था? स्टार्टिंग में जी। स्टार्टिंग में आई थिंक वी डिड नॉट पुट मोर देन 1 or 2 lakhs आई थिंक. और ऋषिकेश में उस टाइम पे इतने में हो हाँ गया जी, था? हाँ जी, because the rent was also very less. It was just I think 5 to 6,000 rupees. The rent was there. The receptionist salary was also very less. I think 6,000 was the receptionist salary. ये मैं बात कर रही हूँ 2008 की, तो मैं तब की बात कर रही हूँ. एंड देन फर्नीचर वगैरह हमने ऑर्डर किया था. फिर हमने बहुत बेसिक से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे डर्मा के होते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, हमने बस वही रखे थे. तुम्हारे पास कोई लेज़र वगैरह उस समय नहीं था. सो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड. बट जो एम्स का थोड़ा टैग था, आई थिंक उसने हेल्प किया. और उस वजह से हमारे जो फेलो डॉक्टर्स थे, जो वहाँ के एस्टैब्लिश्ड पीडियाट्रिशियंस थे, जो ऋषिकेश में 10-10, 15-15 साल से एस्टैब्लिश्ड है, उन सबका भी काफ़ी सपोर्ट रहा. वहाँ के जो रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स थे, तो दे यूज टू सेंड लॉट ऑफ पेशेंट्स. एंड ऋषिकेश में जो मैंने एक देखा, जो वहाँ का क्राउड है, वो डॉक्टर को ना बड़े भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. और पहाड़ के लोग आते थे, उत्तरकाशी. सो दोज आर वेरी वेरी सिंपल पीपल. वो डॉक्टर्स को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और डॉक्टर्स को एक डॉक्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं. जबकि अगर आप देहरादून में आते हो तो थोड़ा अप्रोच मॉडर्नाइज हो चुका है, कमर्शियल हो जाता सो है. कमर्शियल हो चुका है. सो दे ट्रीट द कंसल्टेशन एक्सेट्रा एज अ कमोडिटी फॉर विच दे आर पेइंग. एंड अगर आप देहरादून से आप गुड़गांव आते हो, दिल्ली आते हो, तो और ज़्यादा चेंज हो चुका है. बट आई वुड से Tier 2, Tier 3 इज स्टिल द बेस्ट ट्रू. फॉर डर्मेटोलॉजी. तो मैम जब आप दिल्ली आए तो फिर क्या पहला स्टेप रहा? तो दिल्ली आके हमने यहाँ पे मोस्टली तो एक अच्छा सा प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट सेटअप किया. आई विल गिव यू अ राउंड ऑफ द ओटी. तो मैंने एक मेदांता के ही किसी ने ओटी बनाया था, तो मैंने उन्हीं को कॉन्टैक्ट किया. उन्हीं की बेसिस पे मैंने एक सेमी मॉड्यूलर टाइप का एक ओटी रेडी किया, ताकि पेशेंट को ऐसा ना लगे कि वो ऐसे किसी से नॉर्मल से उसमें चला गया है. तो ओटी की ना प्रॉपर गाइडलाइंस होती है कि कॉर्नरलेस वो होना चाहिए, उसका वॉल और रूफ का जंक्शन होना चाहिए, फ्लोर और वॉल का जंक्शन कॉर्नरलेस होना चाहिए. मैंने उस पर ध्यान दिया. फिर जो क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर फ्लोरिंग होनी चाहिए, एंटीबैक्टीरियल कोट होना चाहिए. सब कुछ जो मैंने एज पर ओटी गाइडलाइंस उस टाइम मैंने बनाया. एंड आई थिंक आई फेल्ट बेटर. ऐसा नहीं कि मुझे उससे ROI मिला, बट आई फेल्ट बेटर वाइल डूइंग द प्रोसीजर्स इन दोज ओटीज जो हमने प्रॉपर तरीके से बनाए थे. एंड वी वर गेटिंग सम इंटरनेशनल पेशेंट्स ऑल्सो बाय दैट टाइम. तो वो चीज़ हमने शुरू करी. फिर शुरू करते करते रियलाइज़ हुआ कि in this particular surgery, hair transplant, patient remains awake. अनलाइक अदर सर्जरी, आप कोई बड़ी सर्जरी करा रहे हो तो उसमें तो आप बेहोश हो जाते हो. इसमें पेशेंट पूरी तरह अवेक रहता है. सो वी नीड टू हैव अ लाउंज एरिया ऑल्सो, ओटी के बहुत पास, जिसमें वो अपना वॉशरूम भी यूज़ कर सके, स्नैक्स ब्रेक, लंच ब्रेक्स भी कर सके और अपने रिलेटिव से भी मिल सके. तो देन वी क्रिएटेड अ न्यू कॉन्सेप्ट कि वी हैव अ ओटी ऑल्सो, अ लाउंज एरिया ऑल्सो, नॉट टू फार, वेयर योर जनरल OPD, बाकी कोई नहीं आएगा वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टाफ का एक्सेस होगा फॉर स्टरलाइजेशन पर्पस. तो स्टरलाइजेशन, हाइजीन, इंस्ट्रूमेंटेशन पे बहुत ध्यान दिया हमने, OT के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया. एंड दैट आई थिंक पेड अस ऑफ इन टर्म्स ऑफ द सेटिस्फैक्शन एंड द रिजल्ट्स दैट वी कुड ब्रिंग इन. तो पेशेंट डिड नॉट फील कि हम बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं. देखिए, पेमेंट उस चीज़ का भी होता है कि लेबर एफर्ट डॉक्टर का कितना लग रहा है, बट अगर आपने सेटअप प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से नहीं दिया तो वो भी एक नेगेटिव आपके अगेंस्ट में जाता है. तो मेरा ये था कि जितनी जितनी नॉलेज है एटलीस्ट उसमें कोई टिक बॉक्स हम चेकलिस्ट में कुछ ऐसा ना रखें जो हम अपनी तरफ से कसर ना छोड़ें. मेरी हमेशा से यही कोशिश रही. तो आई विल गिव यू राउंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑल्सो राइट नाउ, वेयर वी हैव ऑल द OTs and the lounges on one floor, where all the general public is not allowed. General OPD उस floor पे होती नहीं है. So that way we are able to segregate the sterilization etc. But that's a very good step, ma'am, कि आप you started small and then you grew slowly. हाँ, तो whatever we used to earn, we used to invest. We तो सब कुछ ही यहीं पे लगाते गए. Everything we kept on investing into the business only. तो कब तक आपको लगा कि इतना हमने कर लिया है तो आई थिंक वी आर ओके, अब हमारी क्लिनिक एस्टैब्लिश हो गई है? देखिए, देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ एस्पिरेशनल डिफरेंस. मैं तो आई एम हैप्पी विद स्मॉल. सो मेरे को तो पिछले आई वुड से कई सालों से ये लगता है दैट यस वी हैव ग्रोन वेल एंड इट्स डन. बट डॉक्टर प्रदीप हैज़ अ एक्सपेंसिव माइंडसेट. ही इज़ मोर ऑफ अ रिस्क टेकर. तो ही वांट्स थिंग्स टू बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर. सो आई थिंक आई एम तो सेटिस्फाइड since 5 years, but I think he has a pursuit for more expansion. आपके अलग अलग जगह ब्रांचेस भी हैं जी. तो ये जो ब्रांच खोलने का अंदर से एस्पिरेशन तो एक आता ही आता है, बट एक जी. डिसीजन लेना होता है कि यार आज
we can manage one branch, let's open another one also. वो कैसे है आपके दिमाग में? हाँ देखिए, वो इसलिए आया क्योंकि एक तो हमारी जो टेक्नीशियंस की टीम थी एंड डॉक्टर्स की टीम जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, व्हेन वी हैव इनफ मैन पावर दैट यस वी कैन डू मोर सर्जरीज एट अ न्यू सेंटर, प्लस हमारे एसओपीज बहुत अच्छे से डिफाइन हो गए थे, जिसको आप सेल्स बोलते हो, हम सेल्स नहीं बोलते, हम काउंसलिंग बोलते हैं। तो हमारे काउंसलिंग के एसओपीज बहुत अच्छे से डिफाइन हो गए थे, प्रोसेसेस थोड़े अच्छे से सेट हो गए थे, सो देन इट बिकम्स ईजी टू रेप्लिकेट इन अ एरर फ्री मैनर। रेप्लिकेट तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट देन यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। तो सर्जरी की क्वालिटी से ज़्यादा ज़रूरी जब आप एक्सपैंड कर रहे हो इज़ द प्री सर्जरी काउंसलिंग ऑल्सो, बिकॉज जैसे यहाँ मैं पर्सनली बैठी हूँ तो मैं मेक श्योर करूँगी कि हर पेशेंट की काउंसलिंग अच्छे से हो रही हो। सो आई विल हैव पीपल, तो थोड़ा डर भी रहता है कि फाउंडर इज़ हियर, बट जब आप अदर क्लिनिक्स खोल रहे हो तो तब वो डर उतना रहता नहीं है। तो इसलिए उस चीज़ को काउंटर करने के लिए वी ऑप्टेड फॉर 2 strategies. वन इज राइटिंग डाउन द SOPs etc. वेरी वेरी नाइसली मेटिकुलसली क्रिएटिंग द प्रोसेसेस। सेकेंड इज हम यहाँ के लोगों को वहाँ ट्रांसफर करें, वी कैन सेंड देम टू डेपुटेशन, आर ओल्ड वंस हु आर मोर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, जो सिस्टम में पक चुके हैं, जिनको पता है कि हाँ काउंसलिंग कैसे करनी है, पेशेंट की केयर कैसे करनी है। सो सेंड द ओल्डर एंड सीनियर गाइज देयर टू मेक दैट हैपन, ताकि आपको वहाँ माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत ना पड़े। वैसे आई एम अ माइक्रो मैनेजर बाय नेचर, तो ग्रेजुअली ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट, सो विच इज़ इन फेवर ऑल्सो ऑफ क्वालिटी, बट इट इज़ इन एंटी फेवर ऑफ बिजनेस, बिकॉज दैट ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट्स एक्सपेंशन। सो आई एम हाईली अगेंस्ट माइंडलेस एक्सपेंशन। तो अगर आज भी मुझे कोई बोलता है कि आप सीधा 100 क्लिनिक और खोल दो, तो आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। तब हम अगर आज आपको कहे कि 100 क्लिनिक विद मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशंस खोलने का मौका मिले, फिर? I'll have to think about it, मेरे पास अब इसका आंसर नहीं है। बिकॉज 100 क्लिनिक में बेसिकली हम पेशेंट के डोर स्टेप तक जाके उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मतलब इवन 1% भी रिस्क ऑफ क्वालिटी नहीं हो रहा है, देन आई थिंक देयर इज नो हार्म, वी कैन डू दैट, बट आई विल हैव टू लुक एट इट। मे बी मेरा शायद एक्सपर्टीज यहीं तक था, वी कैन हैव बेटर एक्सपर्ट्स फॉर फर्दर एक्सपेंशन। मैम यू हैव आई थिंक progress in the field of hair transplant. आपको कभी लगा नहीं you should also move on to cosmetology? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी टू लीव कॉस्मेटोलॉजी एक्चुअली, आई डोंट वांट टू गो बैक देयर, बिकॉज क्या होता है बोटॉक्स फिलर्स वगैरह में ना काफ़ी जो रिजल्ट्स हैं सब्जेक्टिव होते हैं और शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं। आपने अगर किसी का ग्लो का फेशियल कर लिया तो वो ग्लो कितने दिन रहेगा, 4 से 8 हफ्ते रहेगा, और उसमें ना काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने उसको पूरा मैंने ट्राई किया है, आई हैव ट्राइड हाफ फेस ट्रीटमेंट्स, मैं अपने फेस पे आधे फेस पे ग्लो, आधे फेस पे फेस लिफ्ट, काफ़ी कुछ ट्राई कर चुकी हूँ। तो उसमें क्या होता है कि व्हेन आई लुक एट राइट एंड लेफ्ट, अगर मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लगेगा देन आई वोंट बी एबल टू अडॉप्ट इनटू माय प्रैक्टिस। तो दैट इज़ वाई मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्मेटोलॉजी आई विल नेवर गो बैक अगेन। क्योंकि मैम ये तो कहते हैं ना कि कॉस्मेटोलॉजी के अंदर पेशेंट रिटेंशन बहुत अच्छा होता है, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं है। एक बार पेशेंट करा के चला गया तो अब जब उसको शायद दोबारा कभी 2-3 साल बाद ज़रूरत लगेगी तभी आएगा। वो तो और अच्छी बात है ना मेरे लिए, मैं तो चाहती हूँ कि हमारा पेशेंट हमारे पास एक ही बार आए। तो बिकॉज अगर उसने आपको एक बार आके अच्छे से सर्विस लिया और आपने अच्छे से ट्रांसप्लांट किया है और वो पूरा मेडिकल मैनेजमेंट भी फॉलो कर रहे हैं, देयर इज नो नीड फॉर देम टू कम बैक। सो मुझे नहीं लगता, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई एम नॉट अ गुड बिजनेसमैन, आई एम नॉट अ रेवेन्यू ओरिएंटेड पर्सन कि हाँ वो पेशेंट बार बार आए। मुझे ऐसा लगा कि कोई ग्लो के लिए बार बार आ रहा है तो मे बी आई एम डूइंग सम इनजस्टिस टू देम, बट हाँ अगर उनको सिग्निफिकेंटली ग्लो फील हो रहा है एंड आई एम एबल टू कंसिस्टेंटली डिलीवर दैट रिजल्ट, देन देयर इज नो हार्म। बट जो मैंने पाया कि ह्यूमन माइंड जो है ना, खासकर कॉस्मेटोलॉजी में, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। मान लीजिए ग्लो आ गया बट उनको लगा नहीं पिछली बार ज़्यादा ग्लो आया था, इस बार कम ग्लो आया, तो उसका कोई पैरामीटर नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर। सो वेर एवर वी डोंट हैव ऑब्जेक्टिव पैरामीटर, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल वर्किंग। कॉस्मेटोलॉजी में एक चीज़ है जो है आपका लेज़र हेयर रिमूवल, वो बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अगर आपने ढंग से किया, आपके पास अच्छा इक्विपमेंट है, तो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे और फिर वो पेशेंट दोबारा आएगा भी नहीं। सो दैट इज़ अ वन गुड एरिया। तो मुझे वो चीज़ कन्विंस करती है जो परमानेंट रिजल्ट दे। मैम जितना बड़ा आपका सेटअप है आज के दिन पे, तो मैम आपको कितना स्टाफ लगता है इस पूरी जगह को मैनेज करने में? देखिए हमारी अगर मेडिकल और नॉन मेडिकल टीम कंबाइन कर दी जाए, ऑल द 3 सेंटर्स, सो वी हैव नाउ 300 पीपल स्ट्रॉन्ग। और अगर मैं एक की बात करूँ सिर्फ, आई थिंक यहाँ पे वी है, बिकॉज दिस बीइंग द हेड ऑफिस, सो वी हैव अराउंड 200 पीपल हियर, बिकॉज यहाँ पे हमारे जो बैक एंड सपोर्ट टीम है, जैसे फाइनेंस, HR, IT,
एडमिन, एवरीथिंग इज बीइंग रन फ्रॉम हियर. ओके. सो ऑल द सेंटर्स का जो बैकबोन है वो यहाँ पे है. सो दैट्स व्हाई द सेंटर स्ट्रेंथ इज मोर हियर. जब आपने शुरुआत करी थी, when you just had 2300 square feet with you, तब कितना स्टाफ लग रहा था आपको? That time I had just 10 or 12 staffs. तो उससे आपने पूरा मैनेज कर लिया था? उस टाइम पे ना काउंसलिंग तो मैं ही करती थी. ओके. ठीक है, काउंसलिंग कंसल्टेशन केवल मैं करती थी. तो आई हैड जस्ट सम मेडिकल स्टाफ टू वर्क विद मी. धीरे धीरे जब सर्जरी का लोड बढ़ने लगा तो तब मेरे पास खुद टाइम नहीं है काउंसलिंग के लिए. देन वी हैड प्रॉपर काउंसलर्स, वी हायर्ड मोर डॉक्टर्स आल्सो. तब फिर धीरे धीरे चीजें एक्सपैंड हुई. मैम एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा भी, आपसे पूछूंगा भी कि ना जितने भी हमारे यंग डॉक्टर्स हैं ना, उन्होंने मूवीज देखी होती हैं, उन्होंने लोगों से सुना होता है कि जब भी एक बिजनेस शुरू कर रहे हो ना तो पैसा लगाओ, MBA रखो और फिर शांति से बैठ जाओ. मैम आपके हिसाब से जब आपने शुरू किया, आप एक फाउंडर थी, आपने कितने काम खुद करे थे? और मतलब थोड़े टाइम बाद ही वो जाके आपने काम आगे लोगों को दिए, बट शुरुआत में आपने खुद कितने काम करे थे? खुद में मैंने सारे ही काम करे थे. ठीक है, मैंने क्लिनिक की क्लेanलीनेस को लेके, HR को लेके, IT को लेके, फाइनेंस को लेके, कंसल्टेशंस, फैसिलिटी मैनेजमेंट, तो सब कुछ मैं अकेले ही कर रही होती थी. आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू स्टार्ट विद. दैट्स एब्सोल्युटली द राइट वे. नहीं, बट आजकल इतना सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है एंड वी डोंट नीड टू हायर अ MBA एक्चुअली. हमको हर चीज़ के स्पेशलिस्ट और गाइड्स मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू गेट राइट पीपल. तो वो चीज़ मुझे लगता है कि यू शुड हैव पीपल हु हेल्प यू इन योर टीम. डोंट मेक देम योर पार्टनर. वो मुझे स्ट्रांगली बोलूँगी, डोंट मेक देम पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग. बिकॉज क्या होता है, मैंने कई केसेस में देखा है, डॉक्टर्स इनिशियली कोई MBA पार्टनर ले लेते हैं, बट उस बिजनेस को कैसे बड़ा बनाना है, उसको बिजनेस बनाना भी है कि नहीं, क्योंकि मैं तो बिजनेस के माइंडसेट से चली नहीं थी. तो उसको बिजनेस बनाना है, किस तरीके से एथिकली ग्रो करना है, वो एक्चुअली करना डॉक्टर को ही पड़ेगा. सो यू कैन हैव MBA इन योर टीम एज एम्प्लॉइज और कंसल्टेंट्स, बट डोंट मेक देम पार्टनर्स, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई लाइकलीहुड कि डॉक्टर्स की और नॉन डॉक्टर्स की पार्टनरशिप इन अ मेडिकल सेटअप में शायद ना चले. आई मे बी रॉन्ग, बट देयर इज बिकॉज एक बेसिक माइंडसेट का डिफरेंस रहता है. मैं अभी भी एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से ज्यादा सोचूंगी रादर देन अ बिजनेसमैन. और मैम जो आपने बात कही है ना कि शुरुआत में सब कुछ खुद करना होता है, वो करना ही होता है. जी. यू कांट डेलीगेट टिल यू नो द निटिग्रिटीज योरसेल्फ. करेक्ट. अदरवाइज दुनिया बेवकूफ बना रही होगी शुरुआत में. जी. सो या, बट वही है कि आजकल ना एक्चुअली इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है. आप देखो, उस टाइम पे यूट्यूब का इतना प्रचलन नहीं था. अभी यूट्यूब पे आपको सब तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. मुझे ROC पता ही नहीं था क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. उसमें कोई MGT7 फॉर्म होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ पता ही नहीं होता. तो देन वी गॉट स्पेशलिस्ट हु कैन टेक केयर ऑफ दोज जॉब्स. ट्रू. आई थिंक मैम इनिशियल स्ट्रगल अगर आप खुद फेस कर लो ना, इवन इफ यू हायर अ स्पेशलिस्ट, यू नो दैट दे कैंट फूल यू ऑन द बेसिक्स. हाँ, यू माइट नॉट नो द कंप्लीट डिटेल, बट ये पता होना चाहिए कि भाई पहले फॉर्म फाइल होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे. हाँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने सीखा देहरादून से कि प्लानिंग डिजाइनिंग करना, पेशेंट की हेयर लाइन बनाना, फिर उसकी हेयर लाइन दिखा के उससे सेटिस्फैक्शन लेना कि हाँ आपको ऐसा ही चाहिए, वो सब चीज़ें देहरादून से जो डेवलप हुई वो यहाँ के रेप्लिकेट हो गई. बट यहाँ पे स्केल में रेप्लिकेट हुई बिकॉज हमारा SOP थोड़ा सेट था. आपकी लर्निंग काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे. जी. मैम Tier 2, Tier 1, you have lived in both cities. आप ऋषिकेश को कौन सा कहेंगे? Tier 3 कहेंगे, Tier 2 कहेंगे? ऋषिकेश is Tier 2. Dehradun is also, I think, Tier 2 only. I think Tier 1. I think let's call Rishikesh Tier 3, Dehradun Tier 2, and then Delhi Tier 1. Yeah. तो मैम तीनों में से what do you suggest? डॉक्टर को, एक यंग डॉक्टर को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? मुझे अगर फिर से पास्ट में जाके मौका मिले तो मैं आई वुड स्टार्ट फ्रॉम Tier 3 सॉरी. ऋषिकेश से. Yes. जबकि ऋषिकेश बहुत महंगा हो गया मैम आजकल. हाँ जी, ऋषिकेश शुरू से ही थोड़ा महंगा रहा है बिकॉज आई थिंक इट्स अ स्मॉल सिटी एंड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड आर कमिंग फ्रॉम टू देयर, मे बी दैट्स व्हाई. तो Tier 3 में मतलब ऐसा क्यों कह रही है वैसे आप? बिकॉज क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी बताया ना मैंने आपको, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी का स्कोप Tier 2 Tier 3 में ज़्यादा है. बट हाँ, मैंने देखा है कि लोग Tier 1 में सेटल होना चाहते हैं बिकॉज वो वहीं से पढ़े हैं. बट मुझे पर्सनली पीस ऑफ माइंड और कॉस्ट ऑफ लिविंग Tier 2 में थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल मिलता है. अब आप मेरे बच्चों से बात करेंगे, दे विल थिंक कि Tier 2 में रहना ही उनके लिए एक तौहीन है. सो वो एक थॉट प्रोसेस है जेनजी का कि Tier 2 Tier 3 में रहना ही उनके लिए तौहीन है. बट मुझे पर्सनली लगता है कि रियल इंडिया Tier 2 Tier 3 में है. अगर कोई रियल बिजनेस बनेगा तो शायद Tier 2 Tier 3 से बनेगा. ट्रू मैम. हमारे पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा मैम
लव्ड क्वेश्चन होता है अच्छा, कि हाउ मच कैन अ डर्मेटोलॉजिस्ट अर्न इन द फील्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट? ओके। मैम, आफ्टर लाइक पोस्ट हिज एमडी, हिज और एमडी 10 years down the line, 20 years down the line. देखिए, अगर एज अ सोलो डॉक्टर वो काम करते हैं, एज अ सिंगल हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर, सो इवन इफ दे आर एबल टू डू 20 to 25 surgeries in a month, so they can have a revenue of maybe 50 lakhs or something, maybe more also. But that is the revenue. उसमें फिर उनकी सारी कॉस्टिंग्स आ जाएंगी, सारे कंज्यूमेबल्स एंड एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा, और फिर उसमें से मार्केटिंग कॉस्ट भी माइनस करना पड़ेगा. मुझे ऐसे लगता है मार्केटिंग पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए डर्मेटोलॉजी और हेयर ट्रांसप्लांट में, बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग surgery. It's a profit making surgery for sure, but the profits can be later on invested into marketing, and I think one should take it slow and steady. मैम, शुरुआत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मैम, जब आप क्लिनिक खोलते हो, द फर्स्ट पेशेंट. तो फर्स्ट पेशेंट लाने के लिए आज के ज़माने में क्या करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट पेशेंट लाने के लिए अभी तो ऑनलाइन, आई थिंक सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे जाना चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन लिस्टिंग प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट वे. देन यू कैन डू फ्री कंसल्टेशन कैंप्स ऑल्सो, जो मैंने गुड़गांव में आके भी किए. देयर वर सम सोसाइटीज हु वर डूइंग सम कैंप्स इन अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज. तो वहाँ जाके चाहे अवेयरनेस ना बढ़ी हो, बट हाँ एक थोड़ा एक्सपोजर वगैरह मिलता है. सो दैट इज हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट फ्यू पेशेंट्स, बट दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल वे टू ग्रो. वो बाद में जो पेशेंट्स ठीक होंगे उनके वर्ड ऑफ माउथ से और पेशेंट्स आने शुरू होंगे. बट देन यू कैन डू फ्री कंसल्टेशन कैंप्स इन हाई प्रोफाइल सोसाइटीज ऑल्सो, बजाय कि आप वहाँ पे कोई होर्डिंग वगैरह लगाओ, उसकी बजाय आप खुद वहाँ जाके सर्विस दो. दैट वुड बी अ बेटर वे. मैम, जब आपके पास सेलिब्रिटी पेशेंट्स आते हैं, एंड आई थिंक आपके पास बहुत सारे आते हैं, मैम, डू दे कम इन एंड डू दे कैरी रिस्क ऑल्सो? बिकॉज जैसे आपने बताया, एक्ट्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, और अगर उसने कुछ कंप्लेंट कल कर दी तो इट वुड बिकम अ बिग न्यूज़. ऐसा भी आपको लगता है अंदर से कभी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. वो तो एक ऑड केस था जो मैंने आपको बताया, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्टर्स हु आर कमिंग, हमसे ज़्यादा उनको डर होता है उनकी जो है सीक्रेसी का, कि उनके बारे में किसी को ना पता चल जाए. सो दे आर वेरी मच, आई वुड से टू द पॉइंट. वो टू द पॉइंट बात करते हैं, वो एग्जैक्टली समझते हैं जो उनको समझना है. एंड आई थिंक दे आर ईजियर पेशेंट्स टू डील विद देन जनरल पेशेंट्स. तो वो आपसे एनडीए वगैरह साइन कराते हैं? देखिए, वो तो हमारा पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी तो हर किसी के उसमें होता ही है, सो दैट इज देयर. बट अभी क्या मैं चेंज देख रही हूँ पिछले 1-2 साल से, सेलिब्रिटीज आर मोर रेडी टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सचेंज द कॉस्ट of advertising with the cost of their surgery. That has opened up a lot. So people अब इसको कोई टैबू नहीं समझ रहे. They are ready to share their own pictures, their own experience by testimonials, etc. I think that's a great way to collab together. Exactly. मैम, आप एक सर्जन भी हैं, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं. तो मैम, we predominantly think that it's a male dominated field. How does being a female and female leader also, how is it being in a male dominated field? कैसा लगता है आपको? देखिए, ये मैंने अभी recently I discovered few years ago that the male neurosurgeon in Australia, he is the highest paid salaried person across the globe. And a female Australian neurosurgeon is paid just half of that. तो मुझे लगता है ये थोड़ा true है, because India में भी, I think not outside India also, people have more confidence in choosing a male surgeon over a female surgeon. So that I think is true. कभी आपको कोई bias feel हुआ है from the patients or from your fellow doctors? Yes, when patients are coming, they feel more confident in talking to the founding doctor, Dr. Pradeep, than me. That is what I have found. That could be a little bit of a personality difference also, or that can be because of that he's the male surgeon. That could also be one of the कैसे reasons. फेस करते हैं आप इस चैलेंज को? I don't face it as a challenge. I take it in a positive stride कि अच्छा, चलो मुझे नहीं करना पड़ेगा. He'll do the procedure, तो मेरा workload कम हो जाएगा. I take it positively. But मैम, जैसे नॉर्मली लोग नहीं ले पाते इसको, ठीक है, it's a very good gesture from your side कि आप ले लेती हैं इसको. But normally people feel a little bit insulted. उनको कैसे फेस करना चाहिए? नहीं, देखिए क्या है, अगर मैं यहाँ भी नहीं वर्क कर रही होती, इवन इफ आई वाज वर्किंग लेट अस सपोज इन सम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, अगर कोई पेशेंट किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहता है, व्हाई टू फील बैड अबाउट इट? वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है. वी शुड इन फैक्ट रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई बुरा लगने वाली बात है. मैम, आजकल आपने सुना होगा टॉक्सिसिटी के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं.
न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो मैम आपकी क्या राय रहेगी एक न्यू डर्मैट JR1 को जो अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट करने जा रहा है कि कैसे उसको अपने 3 साल प्लान करने चाहिए, एंड इफ देयर इज एनी टॉक्सिसिटी अराउंड तो कैसे उसको मैनेज करना चाहिए? देखिए, मेडिकल नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में जाते हैं या कहीं भी कुछ भी सीखने जाते हैं, आपको हर जगह लोग मिलेंगे हु आर रेडी टू पुल यू डाउन, हु आर जेलस ऑफ यू, हु डोंट वांट यू टू प्रोग्रेस। बट आपकी खुद की प्रोग्रेस, आपकी खुद की हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन तो सिर्फ आपके हाथ में है। तो वन शुड ऑलवेज फोकस ऑन थिंग्स विच आर देयर इन देयर कंट्रोल। दिस कॉल्ड समथिंग, अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सर्कल ऑफ कंट्रोल। तो आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में जो चीज़ है, आप केवल उसी पे फोकस करिए। आप मेक श्योर करिए कि अच्छा, ये चीज़ मेरे साथ बुरा हो रहा है, पर क्या मैं इसको ठीक कर सकती हूँ कि नहीं। अगर मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, मैं उसको ठीक नहीं कर सकती, देन लेट इट बी। Focus on things which you can control and make them better. Gradually you will see your circle of control expanding. Make things which are out of your control coming into your control by doing hard work within the circle of control. अपनी एनर्जी, अपने टाइम को उस तरफ ना लगा के आप उस सही जगह पे लगाओगे तो ये मेडिकल फील्ड में नहीं है, ये बाकी सब जगह फील्ड में यू विल सी लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, पीपल पुलिंग यू डाउन, पीपल टेकिंग अवे योर क्रेडिट, वो हर जगह होता है। तो मैं आपको वैसे बताऊंगी, जैसे सपोज हम JR हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, उसकी अच्छी केस रिपोर्ट बन रही है और सब कुछ हो रहा है, बट द प्रोफेसर आस्क्ड सम अदर JR टू राइट द पेपर फॉर दैट। तो देन व्हाट यू विल फील कि मेरा हक ले लिया, बट ठीक है, दैट पेशेंट वाज बिलोंगिंग टू द कंसल्टेंट्स यूनिट, सो इट इज हिज चॉइस, so we should not feel bad about it. Same mentality you have to carry when you're working as a doctor. पेशेंट आया, वो आपको नहीं दिखाना चाहता, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और डॉक्टर को दिखा के ज़्यादा खुश है, तो उसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, उसकी चॉइस है। डर्मेटोलॉजी जैसे एक ब्रांच है, मैम किस टाइप ऑफ पर्सन के लिए ये मोस्ट सूटेड ब्रांच है? क्या पैरामीटर्स होने चाहिए या कैसे उनका पर्सनालिटी होनी चाहिए एक स्टूडेंट की टू बी द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन हिज और हर लाइफ टाइम? देखिए, क्वेस्ट फॉर लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एक सिंड्रोम था वूली हेयर नीवस, मैंने एम्स में देखा ही नहीं। वो जब मैंने पहली बार पेशेंट देखा तो मैंने वो फेसबुक पे उनका पोस्ट किया था हमारे ग्रुप में, ऑफ कोर्स आफ्टर पेशेंट्स परमिशन। देन आर माई फेलो डॉक्टर्स ऑन फेसबुक, दे टोल्ड कि ये तो वूली हेयर नीवस है और तुम हैरान है कि तुमको पता ही नहीं था। तो इट्स ऑन बी अ स्टूडेंट throughout your post graduation and even when you are senior resident and when you are doing a private practice, because learnings आती रहेंगी आपके पास। तो एक तो वो है। दूसरा, अपग्रेडेड रहिए नॉलेज में, बिकॉज बहुत सारे नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं। जैसे मैं खुद अवेयर नहीं हूँ, बहुत सारे नए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आए हैं इसमें डर्मेटोलॉजी में। जो जितने भी हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं उन सब के लिए अच्छे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। तो अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, और डर्मेटोलॉजी में कॉन्फ्रेंसेस में जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कॉन्फ्रेंस में जाके आपको नए इक्विपमेंट क्या आ रहे हैं, नए छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स क्या आ रहे हैं, नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या आ रही हैं, वो आपको सीखने को मिलती है विद इन द कॉन्फ्रेंस हॉल ऑल्सो एंड आउटसाइड द कॉन्फ्रेंस हॉल ऑल्सो व्हेन यू इंटरेक्ट विद द अदर डॉक्टर्स। तो अभी तो मैंने सुना है कि डर्मैट में इतनी कॉन्फ्रेंसेस होती है, ऑल 365 डेज कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। So I think conference is a good way to upgrade our knowledge. Ma'am, you have run a successful dermat practice now. What skills would you say are like non-negotiable you must know to be a successful dermat practitioner? Basically, you should have a very strong hold of your subject. Wherever you are able to make the diagnosis, be very sure and treat. But treatment के साथ, because वो patient को skin lesion दिख रही है, give them a timeline what to expect. What they should expect within next 1 day, what they should expect within 1 week, and when they should be reviewing with you. और रिव्यू जितना लेट हो उतना अच्छा है। हमेशा फोकस कीजिए पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिले, परमानेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स मिले। और काउंसलिंग इंक्लूडिंग द फैमिली काउंसलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत बड़ा आ जाता है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। जैसे विटिलिगो का कोई पेशेंट आता था, सफ़ेद दाग का, उसको ये काउंसल करना कि ये कोई बहुत ही छूत वाली बीमारी नहीं है, इसको आप वैसा उतना नेगेटिव मत सोचो। तो वो हमारे बोलने से नहीं होता, बट वो आपको उनका एक माइंड का एक खोलना होता है, थॉट प्रोसेस, कि इसको आप एक बीमारी ही ना समझो। तो वो एक काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। So you have to be a great communicator. Communicator, yes. Communicator and objectively telling patients what to expect, because they will be seeing their skin lesion in front of their eyes. एंड उनको ये चीज़ का भी एक भय पैदा करना होगा कि आप जैसे किसी को हैंड डर्मेटाइटिस है, आपको ये वाली प्रिकॉशंस लाइफ लॉन्ग लेनी है, नहीं तो बीमारी वापस आ जाएगी।
जैसे हम हेयर ट्रांसप्लांट में पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी, नहीं तो बाल चले जाएंगे, हमारी गारंटी नहीं है, रुक गए तो आपकी किस्मत है, बट जा सकते हैं। तो टेलिंग देम द वर्स्ट केस सिनेरियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। So an introvert, shy person can become a dermatologist or not? देखिए, इंट्रोवर्ट और शाय को अलग अलग करते हैं, ठीक ठीक है। आई थिंक बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज अ बिग स्ट्रेंथ बिकॉज इट मेक्स योर माइंड मोर फोकस्ड, मोर ऑब्जेक्टिव। आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई एम अ प्राउड इंट्रोवर्ट, ओके। Shy, definitely you have to give away your shyness whenever you are in medical field, because you have to talk to patients, you have to open up yourself, then only they'll open up themselves also. तो वो हमारा रहा एम्स में, we were made to present case conferences, interdepartmental case conferences, journal club seminars, तो वो स्टेज शाइनेस तो चली जाती है। बट आई थिंक बीइंग एन इंट्रोवर्ट हेल्प्स मी पर्सनली एज अ एंटरप्रेन्योर ऑल्सो एंड एज अ डॉक्टर ऑल्सो। ग्रेट मैम। मैम, हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर भी like in the next 10 years, what do you see the future of hair transplant? कौन सी नई टेक्निक्स आ जाएंगी? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है स्टेम सेल और क्लोनिंग, ये दो चीज़ें तो मुझे थोड़ा डिस्टेंट लगता है फ्यूचर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ नई चीज़ें आएंगी, कुछ इनोवेटिव, जिससे हमारा पेशेंट का पेन कम होगा, डिस्कम्फर्ट कम होगा, और एक्सट्रैक्शन विद बेटर वूंड्स, मतलब स्मॉलर वूंड्स, वो होगी। सक्सेस रेट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट अगर किसी तरीके से बढ़ सके, आई थिंक वो दैट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। रीजेनरेटिव मेडिसिन में मैं थोड़ा सा लेस होपफुल हूँ। आजकल रीजेनरेटिव मेडिसिन के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ आ जाता है वेल एंड गुड, बट आई एम नॉट वेरी वेरी होपफुल कि उसमें कुछ बहुत ट्रांसफॉर्मिंग आएगा। मैम, अभी क्या सक्सेस रेट चलता है वैसे हेयर ट्रांसप्लांट में? देखिए, अगर टेक्निक बिल्कुल सही की जाए, पेशेंट की स्किन बहुत नॉर्मल है, कोई स्कारिंग, एलोपेशिया या बर्न स्कार या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्कार नहीं है, तो सक्सेस रेट इज मोर देन 98%, 98 to 100% of whatever hair we implant. And what are the basic risk factors that the patient needs to take care of? First of all, they should not be diabetic or hypertensive. If they have diabetes or hypertension, it should be controlled with medicines. That is number one. Then they have to avoid alcohol and smoking and painkillers, or if they are taking multivitamins 1 month prior to the procedure. So ये हम चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा किसी का कोई कार्डियक प्रोसीजर हो रखा है, कोई एंटीकोगुलेंट्स ले रहा है, तो वो भी हमको एस्पिरिन वगैरह बंद करना पड़ता है 2-3 दिन के लिए प्रायर टू द प्रोसीजर। अदरवाइज वी चेक फॉर ECG एंड कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इन पीपल हु आर मोर देन 40 to 45 years of age। तो उनका एक जनरल फिजिशियन क्लियरेंस हम ले लेते हैं बिफोर टेकिंग देम अप फॉर द सर्जरी। मैम, अभी हमारे देश में बेसिकली कौन कौन सी टेक्निक्स चल रही हैं फॉर हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए, जो सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक थी दैट वाज FUT, द स्ट्रिप टेक्निक, जिसमें हम पूरी स्ट्रिप काटते थे और फिर टाँके लगा देते थे। दैट इज द ओल्डेस्ट टेक्निक। देन केम द FUE, इन विच वी एक्सट्रैक्ट सिंगल हेयर एंड देन इम्प्लांटेड। जो हम करते हैं दैट इज DHT, इन विच द एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन इज बीइंग डन साइमल्टेनियसली। और अभी इससे बेटर कुछ चल रहा है? इससे बेटर तो अभी कोई टेक्निक नहीं आई है, बट इसी को जो करने के जो फाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें कुछ छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। मैम, बहुत लोग टर्की जाते हैं जी जी फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड एवरीथिंग, तो वहाँ ऐसी कौन सी टेक्निक है? मैं भी टर्की गई थी। मी एंड डॉक्टर दीप ऑल्सो वेंट टू टर्की टू सी कि वहाँ क्या ऐसा बेटर हो रहा है, सो दैट वी कैन ब्रिंग समथिंग बेटर फ्रॉम दैट प्लेस। तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ ना सेटअप्स बहुत अच्छे थे। जो हम टॉप क्लिनिक्स पे गए थे इस्तांबुल एंड टर्की, हमने देखा क्लिनिक का सेटअप बहुत अच्छा था, नंबर ऑफ स्टाफ वहाँ बहुत थे, और वहाँ पे लिंग्विस्टिक सपोर्ट बहुत अच्छा था, यानी लैंग्वेज सपोर्ट। कोई पेशेंट जर्मन से आ रहा है, आप उससे जर्मन में बात कर रहे हैं, फ्रेंच का आ रहा है, फ्रेंच में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा उतना लिंग्विस्टिक सपोर्ट नहीं है, वी डोंट नो इटालियन, फ्रेंच, जर्मन। सो आई थिंक यूरोपियन पेशेंट इज कमिंग लेस टू इंडिया बिकॉज ऑफ दैट लिंग्विस्टिक सपोर्ट। वहाँ पे जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट मेडिकली अगर मैं आपको सच बताऊँ, मेडिकली वी आर डूइंग मच बेटर। टेक्निक सेम है बेसिकली? टेक्निक हमारी थोड़ी बेटर है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे वो ट्रेडिशनल FUE कर रहे हैं। मोस्ट क्लिनिक विच आई सॉ आर डूइंग द ट्रेडिशनल FUE, DHT नहीं कर रहे वो लोग। एंड द इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं विच इंक्लूड्स मैग्निफिकेशन, मैंने जो देखा वहाँ पे मैग्निफिकेशन डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं 1.5 to 2x। उसमें आप बहुत फास्ट सर्जरी कर सकते हो और आपकी एक्यूरेसी कम होगी क्योंकि आपका मैग्निफिकेशन ही कम है। हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं 4x, 5x, वी हैव 8x ऑल्सो, and then we have a microscope which has 28x also, operating microscope। तो हाई मैग्निफिकेशन में हम यहाँ कर रहे हैं, वो लोग लो मैग्निफिकेशन में कर रहे हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा है।
आप टर्की में जाएंगे, एक क्लिनिक एक दिन में 4000 ग्राफ्ट लगा देता है, हम लोगों को 4000 ग्राफ्ट लगाने में 2 दिन लगते हैं, बट हमारी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है। आप देखो ना, आप बाल को अगर आपने एक एक छांटना है रोज, आप नेकेड आई से करोगे तो आपकी आंखें थक जाएंगी। अगर आप उसको मैग्नीफाइड व्यू में देखते हो 6x में, दैट ईच हेयर अलोंग विद द हेयर ग्राफ्ट बिकम्स अ जॉय बिकॉज यू आर सीइंग इट इन अ मैग्नीफाइड व्यू। आपको क्या लगता है मैम, 10 years down the line या maybe in a couple of years, how is AI going to change this branch? I think AI is we've already started incorporating AI into our general छोटी छोटी चीज़ों को ऑटोमेट करने में, ऑपरेशंस में। तो बट मेडिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि AI कैन गिव यू more better graft estimation, recipient area estimation, how your picture will look if you go for a hair transplant or if you go for a wig or if you go for a SMP. I think AI can give you more realistic pictures over there. मैम आप इतने मतलब आपके पास 100 डॉक्टर्स होंगे ऑलमोस्ट, और मैम इतने पेशेंट्स हैं मैम, हाउ डू यू लीगली प्रोटेक्ट योरसेल्फ? बिकॉज द चांसेस ऑफ हैविंग अ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आई मीन इंटू 4x आपके लिए। तो हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? आप या आपकी कंपनी कैसे बचाते हाँ हैं जी, अपने हाँ आप जी, को? उसके लिए देखिए हम वही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सेटिंग, राइट पेशेंट सिलेक्शन पे बहुत फोकस करते हैं। वी डोंट टेक अप पेशेंट्स जिनकी एक्सपेक्टेशंस ही मैच नहीं हो रही हैं, तो दैट इज़ वन थिंग। देन वी हैव प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कंसेंट्स, वी हैव प्रूफ कि हमने ये सब चीज़ें बता दी थी बाय ईमेल, व्हाट्सएप एंड रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस, तो वो हम चीज़ें कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी जो पेशेंट अनहैप्पी होता है, सो वी हैव टू मेक अ डिसीजन कि सच में उनके डेंसिटी कम आई है या उनकी एक्सपेक्टेशन सही नहीं थी। तो देन वी हैव टू डू समटाइम्स अनदर प्रोसीजर फॉर देम टू ऐड डेंसिटी। पेशेंट की हैप्पीनेस आप सबसे टॉप पे रखिए, बाकी तो देयर इज नो अदर प्रोटेक्शन फ्रॉम मेडिको लीगल केसेस दीज डेज। तो मैम कभी हुआ है कोई मेडिको लीगल केस की तरफ बढ़ गया हो कोई? लकीली नहीं हुआ है बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक, सो दैट हैज बीन अ ब्लेसिंग। मैम आपको क्या लगता है मैम, डर्मेटोलॉजी इन द नेक्स्ट 10 years एज अ फील्ड कहाँ होगी, एंड टॉप 5 areas which you feel will be having the maximum potential in the field of dermatology? मुझे लगता है डर्मेटोलॉजी में इंडिया में थिंग्स विच आर लैकिंग इज मोज माइक्रोग्राफिक सर्जरी, डर्मेटोपैथोलॉजी कमिंग अप इन अ बिग वे, वेरी वेरी बिग डर्मेटोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर लैकिंग। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे, और जेनेटिक रिसर्च इज ऑल्सो वन ऑफ द एरियाज, बिकॉज एम्स में हम रहते थे तो हमने बहुत रेयर सिंड्रोम्स देखते थे, जीरोडर्मा पिगमेंटोसिस, लिपोइड प्रोटीनोसिस, किंडलर सिंड्रोम मैंने देखा था। इनफैक्ट किंडलर सिंड्रोम की जेनेटिक एनालिसिस में हमने एक नया जीन डिफेक्ट भी पाया था। सो आई हैड वन पब्लिकेशन इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑल्सो, एंड आई वॉज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट दैट टाइम, which was of course by the grace of my faculty at that time. तो जो हमारे टीचर्स थे उनकी वजह से वो हो पाया था, because they had good connections in genetic analysis. तो मुझे लग रहा है जेनेटिक रिसर्च, डर्मेटोपैथोलॉजी और these biological रिसर्च, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, आई थिंक बहुत बड़ा एक स्पेस बाकी है डर्मेटोलॉजी में आगे जाने के लिए। मैम आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, जी। आपने इतना मेडिकल फील्ड देखा है मैम, of all the 19 medical branches, which 5 do you think will have the maximum impact in the next 10 years? I think psychiatry is going to have a very very big impact. Psychiatry and others I would say dermatology के अलावा these day care procedures, oncology में जो होते हैं day care procedures, they are also going to come up in a big way. Then the screening industry, the cancer screening industry also I think is going to become big, because जिस हिसाब से मेलिग्नेंसीज और अवेयरनेस फैल रही है, तो कैंसर की ट्रीटमेंट और कैंसर की स्क्रीनिंग की, वो दोनों चीज़ें आई थिंक फ्यूचर में प्रोग्रेस करने वाली हैं। एंड नेक्स्ट बिग थिंग इज समथिंग टू बिग हैपन इन डायग्नोस्टिक फील्ड, बिकॉज मुझे लगता है कि डायग्नोस्टिक फील्ड में भी वी हैव वेरी मतलब हमको और वाइडली अवेलेबल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस होने चाहिए, वेयर वी कैन हैव मोर ट्रस्टेड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। Thank you so much मैम। With this we come to the end with the first part of the conversation. Okay. अब हमारे पास कुछ rapid fire questions हैं मैम, बहुत simple 2 rules. Okay. Super truthful and super spontaneous. Okay. I'm ready हैं आप? Great. Yes. All right. Ma'am, who was your first role model? First role model was, for me, our teacher was there, Dr. Ramam. He was our faculty teacher at AIMS. He was associate professor at that time. So I think उनसे हमने बहुत analytical thinking सीखा
कि पेशेंट जो आया है हमारे पास उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उसके सिर्फ डायग्नोसिस को ट्रीट मत करो, उसके प्रॉब्लम्स को सेग्रीगेट करके हाउ डिड यू डॉक्यूमेंट दोज डायग्नोसिस के जो आपने टेस्ट किए हर एक प्रॉब्लम को सेपरेटली, एंड देन हाउ आर यू एड्रेसिंग ईच प्रॉब्लम सेपरेटली. सो दैट इज समथिंग वी लर्न फ्रॉम हिम. And he taught us the value of dedication somehow. And all our teachers were great actually. They are legends in themselves. But Dr. Ramam was role model during my PG days. Ma'am, what's your dream for 2035? 2035. क्या ड्रीम है आपका? Maybe we as Indians and our country emerges as a world leader. Economically and development wise also. If you could erase one rule of society, what would that be? Okay, the society, they value the materialist achievements more. So I think that is not something good कि materialistic achievement के पीछे उसको ज़्यादा value किया जाता है society में. That is something I want to change. So I want to change the value system. मैम बहुत टाइम है उसमें. If you could eat only one dish forever, क्या डिश होगी वो? I think I am very protein conscious and a vegetarian, so I'll focus on soya bean. मैम आप जिम फ्री, आप मतलब you maintain an exercise lifestyle? No, I'm very lazy person, so I aspire to, but not being so regular. What's your typical day like? I get up at 5 or 4 sometimes, and then I try to do little bit of morning walk in the morning. Then I take bath, and then I do some study, maybe any good reading for my own entertainment sort of. I prefer to read, or maybe videos and podcasts is the best way to upgrade. तो वो चीज़ मैं करती हूँ मॉर्निंग में. देन माई पेशेंट्स दे स्टार्ट कमिंग एट 8 or 9, सो आई टेक फ्यू कंसल्टेशंस एंड माई मॉर्निंग सेशन with planning, designing and all the surgeries is done by the day. And by the lunch time I'm done with the half of the procedure. And वो मैं surgical days अब कम रख रही हूँ, हफ्ते में 2-3 दिन. Rest of the time I'm looking after other parts of the organization because I am just heading the operations right now, so I have to look after everything. It's a big job, ma'am. Yes. Ma'am, happiest moment of your life? Happiest moment of my life was seeing my kids. So thank you so much, ma'am, for such an insightful discussion. I think everything we needed to know about dermatology from a hair transplant way, we have come to that. So thank you so much for everything. Lovely discussion. Thank you so much, sir. And thank you so much, guys, for watching today's podcast. I believe we have shown you a very different entrepreneurial side of dermatology. I loved today's conversation. I hope you have too. And who do you want the next guest to be? Please put down in the comment section. I'll make sure I invite them to the hot seat. As always, before you exit, do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much and God bless you.